जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Niravishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Radha Parth Sati, Radha Parth Sati Radhe. Jai Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jai Narsingha Dev, Narsingha Dev, Narsingha Dev, Jaya Narsingha Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराज का आचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराज का आचार्य स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललता देवी विशाखा देवी कीज। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी कीज। बोल प्रेम आनंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी सवेरे एक भक्त ने मुझे पूछा कि कहीं बाहर जा रहे हो। भक्त है यहाँ पर, कहीं बाहर जा रहे हो। बैग पकड़ा था हाथ में, उसमें कापी पड़ी थी मेरी। तो जब भी मैं बैग उठाता हूँ तो लोग समझते हैं कि कहीं बाहर जा रहा है। तो उसने मेरे हाथ में बैग देखा और बोलता है कि भाई बाहर जा रहे हो। मैंने उनको जवाब दिया, और कितना बाहर जाएं, पहले ही बाहर निकले हुए हैं। तो हमारा घर भगवत धाम, भगवान का धाम है असल में, है ना। भगवान के बच्चे हैं हम। तो वहां से तो भाग के बाहर आ गए, और कितना बाहर जाएं। तो आज का जो श्लोक है वो भी इससे थोड़ा सा संबंधित है। हाँ, कितना बाहर जाएं। और बाहर जाके तो इतने दुख उठा रहे हैं हम लोग। अपने घर में थोड़ा दुख होता है, जब घर से बाहर जाता है आदमी तो तभी दुख होता है। ना खाना ढंग से, ना सोना ढंग से, कुछ भी तो ढंग से नहीं होता, सब तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन अपने घर में जो मज़ा है वो थोड़ा कहीं है। तो हमारा घर तो भगवत धाम है, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर पड़ गए हैं, बाहर आ गए, और बाहर और कितना जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुद्रि। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। धन्यवाद। आज हम
श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 का 31वां श्लोक पढ़ेंगे। ये मैं ही पढ़ूंगा, पहले आप सुनिए। तस्मिन् अपि कालं प्रतीक्ष्यमाना संगाच्च भृशम् उद्विग्ना आतं सहचरा शुष्कपर्णतृन् वृद्धा वर्तमानो मृगत्व निमत् अवसानम् एव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदकलिनीम् उत्सर्ज। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। तस्मिन् अपि, उस आश्रम, पुलह आश्रम में, कालम मृग शरीर में, जीवन का अंत, प्रतीक्षमाना सदैव प्रतीक्षा में रत, संगात संगति से, च तथा, भृशम लगातार, उद्विग्न चिंतापूर्ण, आत्म सहचरा परमात्मा को ही एकमात्र संगी मानकर, शुष्क पर्ण तृण वृद्धा, शुष्क पर्ण तृण वृद्धा विरुद्धा, केवल सूखी पत्तियां तथा बूटियां खाकर वर्तमाना जीवित रहते हुए, मृगत्व निमित्त मृग शरीर धारण करने के कारण, अवसानम अंत, एव केवल, गणयन विचार करते हुए, मृग शरीरम मृग के शरीर को, तीर्थ उदक्लिनम उस तीर्थ स्थान के जल में स्नान करते हुए, उत्सर्ज त्याग दिया। जैसा कि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, भरत महाराज के चित्र का वर्णन। भरत महाराज चक्रवर्ती राजा थे पूरे संसार के। और समय आने पर, जैसे हमारे वर्णाश्रम में होता है, आजकल कलयुग में तो वर्णाश्रम नहीं निभा सकते, उस समय ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू होती थी, लोग पालन करते थे। पूरे संसार का चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद भी समय आने पर उन्होंने अपना राजपाट, अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दी। आजकल चाहे हमारे पास जितना भी पैसा इकट्ठा कर लें हम, लेकिन अपनी संपत्ति जो कमाई है पूरे जीवन भर मेहनत करके छोड़ते नहीं हैं हम लोग, मरते दम तक भी नहीं छोड़ते। लेकिन भरत महाराज ने अपना सब कुछ त्याग करके
अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया और जंगल में तपस्या करने के लिए, आत्म साक्षात करने के लिए चले गए। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौड़ निताई की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। सब कुछ त्याग करके वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए थे तो समाधि में आंखें बंद करके तो बहुत जोर का आवाज आई शेर के दहाड़ने की। तो उनकी आंखें खुल गईं, समाधि खुल गई। क्या देखते हैं कि एक शेर एक हिरनी के जो गर्भवती है उसके पीछे उसको खाने के लिए दौड़ रहा है और मृगी ने छलांग लगाई नदी में, नदी पार करने के लिए। और डर के मारे जो छलांग लगाई तो उसका गर्भ वहां पर गिर गया, उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ हिरण, लेकिन खुद वो मर गई। महाराजा भरत ने उस मृग के शावक को, बच्चे को उठाया और उसका पालन पोषण किया और उसको बड़ा भी किया। इतना प्यार हो गया उससे कि उसके बिना वो एक मिनट भी नहीं रहते थे। अपने साथ ही उसको सुलाते, जब वो तपस्या में भी बैठते। हम भी कभी कभी घरों में देखते हैं ना कि घर में माला जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई हमारा बच्चा, कोई पोता, कोई दोता, कोई धोती गोद में आके लिपट जाते हैं तो माला भी जाप करते रहते हैं, उसको भी प्यार करते रहते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते हम, लेकिन होते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि नदी में गिर जाते हैं। दो कश्तियां हैं तो उसमें एक पैर इधर एक पैर इधर, तो गिरेंगे। हरि बोल। नींद नहीं सोना। हाँ, बहुत सो लिया है, बहुत कई जन्मों तक सोए हैं, अभी और भी सोना है। तो दिन रात उस शिशु का ख्याल करते। एक दिन वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था तो बाहर चला गया आश्रम से। तो भरत महाराज, माला तो कब जाप हो वहां पर समाधि कब लगे, लग नहीं सकती उस समय, उनका ध्यान ही मृग में है। कहां गया कहां गया कहां गया मेरा बच्चा, कहां गया मेरा बच्चा। और ऐसा सोचते सोचते उनके वियोग में उसके प्राण निकल गए। और फिर क्या हुआ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। यानी सारा बहुत कुछ दिया हुआ है भगवद गीता में। जो जो भाव तुम्हारे हृदय में आएगा अंत साल में वही शरीर मिलेगा। तो वो अंतकाल में मृग के बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, उनको मृग का बच्चा बनना पड़ा। लेकिन एक बात उनके लिए ठीक रही, क्या? हमारे जीवन में नहीं ऐसा हो सकता, बहुत रेयर हो सकता है। हम जब तृप्ति में भी लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में भी लगे हुए हैं, अंतकाल आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमें याद भी नहीं रहेगा भगवान की भक्ति कर रहे थे हम, नहीं याद रहेगा।
लेकिन भगवान की कृपा से भरत महाराज को सब याद रहा, और जब वो भी हिरण बने, क्योंकि अंतकाल में उन्होंने हिरण को याद किया था तो हिरण बन गए, लेकिन ये उनको सब याद रखा पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया और क्यों मैं हिरण का बच्चा बना। इसलिए वो वहां से पुलह आश्रम में भाग गए थे, वहां तक, वहां स्नान भी करते गंडकी नदी में। और लेकिन हमारी ये स्थिति ऐसी नहीं है, हमें नहीं याद रहता है कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का श्लोक है 31वां जो हमने पढ़ा है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। थोड़ा रेफरेंस आपको मैंने सुना दिया इसके बारे में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, सुनिए पहले। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार ना होने के प्रति सतर्क रहने लगे। हाँ, यहां पर एक सवाल पैदा हो गया, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। कोई कहे कि भाई इसका मतलब है कि हमें किसी पर दया नहीं करनी है, ये शुरू रोजाना ही हम सुनते हैं। नहीं करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी की बात भी याद रखो, क्या जीवन सार्थक करी करो उपकार। अपना जीवन सार्थक नहीं किया तो औरों को उपकार करने का क्या फायदा है, वो नहीं होगा। पहले अपना जीवन सार्थक करो, उसके बाद औरों का उपकार करो। चलो अपना जीवन तो सार्थक हो गया, भक्ति में लग गए, तो फिर जीवों का उपकार करें। हाँ करें, उनको कृष्ण भक्ति दीजिए। और जहां तक के अभी भरत महाराज का सवाल है, उन्होंने तो ज्यादा ही मोह कर लिया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मदद तो करो जीव की, लेकिन उसी में रचमच ना जाओ, उसी में ना रच जाओ। बस मदद की, थोड़ा सा चलते बने जाओ। हिरण का बच्चा है, कहीं भी घास खा लेगा वो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, दया भी करनी है हमने, जैसे कल हम सुन रहे थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं और लोगों के साथ हमारा संपर्क भी है, तो हमें दया भी करनी है। हाँ, जो वृंदावन आदि में चले जाते, जैसे कल बोला है, तो उनकी बात अलग है। केवल भक्ति के लिए वहां पर गए हैं वो, उनकी बात अलग है। लेकिन दया करके उन्हीं में फंस नहीं जाना है हमने। जितनी जरूरत है उनको सहायता करो और आगे चल दो। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार ना होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। हमें भी, हम भक्ति में आगे हैं भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन आश्रम में पहुंच चुके हैं। तो यहां आकर भी हमें बड़ा कोशिश रहना है, ध्यानपूर्वक रहना है कि कहीं दोबारा से कुसंगति में ना फंस जाएं। बाहर तो बहुत कुसंगतियां की, लेकिन अभी दोबारा से भक्ति में आने के बाद भी कुसंगति में ना फंसे। बड़ा ख्याल किया भरत महाराज ने मृग के शरीर में इस समय कि मैं कुसंगति में ना दोबारा ना फंसूं। और किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। किसी को अपना पिछला जीवन नहीं बताया उन्होंने, उनको याद था सब। सूखी सूखी पत्तियां खाकर के वो गुजारा करते रहे। इंद्रिय तृप्ति
की ओर ललायत नहीं थे। वास्तव में वे अकेले ना थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। कोई सोचे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, नहीं नहीं, हमेशा हमारे साथ भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। कभी भी हम अकेले नहीं हैं। चाहे हम जंगल में हैं, चाहे आकाश में हैं, चाहे कहीं भी हैं, कहीं भी अकेले नहीं हैं। भक्त कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। जो भक्त हैं वो चाहे महसूस करें, लेकिन वास्तव में अकेले वो भी नहीं है। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे कि ये मृग शरीर की जब आयु कब खत्म होगी, बस इसी की प्रतीक्षा में वो लगे हुए थे। इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित नहीं होना है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन और जप करते रहें। भगवत गीता भागवतम की कक्षाएं सुने और इंतजार करें ये शरीर छोड़ने का। शरीर तो नाशवान है, ज्यादा दर्द तो नहीं रहेगा हमारे पास। ज्यादा ज्यादा 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल, तो इस प्रतीक्षा में हमें ये जीवन बिताना चाहिए भक्ति करते हुए। अंत में उस तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। यदि हम भी किसी तीर्थ स्थान में अपना शरीर छोड़ें तो अच्छा है। इसीलिए बहुत सारे लोग वृंदावन चले जाते हैं और वहां उनका ये इच्छा होती है कि वहां पर जाकर के अपना शरीर हम त्यागे। लेकिन फिर भी सबको मौका नहीं मिलता है। सब मौका उन्हीं को मिलता है जो शुद्ध भक्त हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं पैसे वाले, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी वहां पर, पूरा वृंदावन बिल्डिंगों। जब शुरू शुरू में हम जाते थे 70 में, तो उस समय का जो नजारा था वो अलग ही था वहां पर। लेकिन अभी वहां पर बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें बनती हैं, कोई बन नहीं नजर आता वहां पर। लेकिन इतनी बिल्डिंगें बना दी लोगों ने कि हम अंत में वहां पर अपना शरीर त्यागेंगे। लेकिन जब उन्होंने शरीर त्यागना होता है, बड़े बड़े महात्मा भी देखे हमने, जो जिनको महात्मा कहते हैं, वो भी आकर के वृंदावन के बाहर आकर के, कोई गुड़गामा में, कोई दिल्ली की हॉस्पिटल में, कोई एम्स में, वहां जाके शरीर त्यागते हैं। मौका सबको नहीं मिलता है। तात्पर्य, हाँ मेरे साथ पढ़िए पहले। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार ना होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। ये नहीं है आज तो हमारे जो कुक हैं उन्होंने तो आज अच्छी सब्जी नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, हम तो घर में हलवा पूरी खाते थे, है ना। ये ध्यान नहीं देना चाहिए ज्यादा। वास्तव में बोले, वास्तव में वे अकेले ना थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। हमने भी पिछला जीवन
शरीर छोड़ा, भौतिक शरीर। जब मेरी दीक्षा हुई ना, दीक्षा का मतलब है पिछला शरीर छोड़ करके नया जन्म। तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि इतने बाल थे मेरे, जब अभी इतने हैं, बाल कटा के आओ। इतने बाल के बाद भी उन्हें बोला कि बाल कटा के आओ, शेव करके आओ, हेड शेव, और जमुना जी में स्नान करके आओ। भाद्र महीना था उन दिनों, राधाष्टमी थी। तो अभी गुरु ने कहा है तो आज्ञा तो पालन करनी है। तो लोही बाजार में जाकर के दोबारा से बाल शेविंग कराई और जमुना जी में स्नान किया, छलांग लगा करके। तो ये मौका हमें भी मिला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थान विशेष रूप से भक्ति साधना के निमित्त हैं। हम लोग इन तीर्थ स्थानों में जाकर के भक्ति कर सकते हैं। क्या क्या नाम गनाए हैं, अभी याद रखना है इनको। वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थल विशेष रूप से भक्ति साधना के निमित्त हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं विशेषतः वृंदावन है, तो सारे पवित्र स्थान हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, विशेषतः वृंदावन। वृंदावन ही क्यों बोला है, इसका जवाब आप लोग दोगे बाद में, क्लास के बाद आप लोगों से पूछेंगे। श्री कृष्ण ने उन वैष्णव भक्तों के लिए जो वैकुंठ लोक को वापस प्राप्त करना चाहते हैं अत्युत्तम तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि जो वैकुंठ लोग जाना चाहते हैं, तो जो वृंदावन है ना, इसका जवाब प्रभुपाद जी ने खुद ही दे दिया। अत्युत्तम स्थान है सारे तीर्थों में। मथुरा मंडल में वृंदावन, और वृंदावन में गिरिराज, और वहां भी सबसे अत्युत्तम राधा कुंड ऐसा कहा गया ना। तो राधा कुंड मतलब वृंदावन सारा बीच में आ जाता है। वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो नित्य यमुना में स्नान करते हैं, जिससे उनके सारे भौतिक कल्मश धुल जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने से सारे कल्मश धुल जाते हैं। शायद इसलिए पहले तो बहुत कल्मश रहे होंगे ना, तो प्रभुपाद जी तो जानते थे कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति है ये, तो इसको स्नान कराओ पहले। तो स्नान कराने के लिए उन्होंने मुझे यमुना जी में भेजा। परमेश्वर के पवित्र नामों तथा लीलाओं का निरंतर संकीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इससे भी शुद्ध होता है, नहाने से भी। और भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन करो, स्मरण करो, इससे भी शुद्ध हो जाते हैं, और फिर हम मुक्ति का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है, तो उसे कम से कम एक बार महाराज भरत की भांति दंड भोगना पड़ता है। जानबूझ करके नहीं करना कुछ भी। कभी कभी सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाएं, फिर भी हमें बड़ा ध्यानपूर्वक, जैसे शुरू में हमने पढ़ा है, ध्यानपूर्वक रहना है, संभल के रहना है, सावधान, नहीं तो दंड भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भरत महाराज के चरित्र का वर्णन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इन्हीं तात्पर्यों में से कुछ मैंने सारांश रूप में लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पर ये एक बात आई है कि जो आदमी जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति में लगता है, उसके लिए प्रहलाद महाराज
कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही घृणित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसे दंड भुगतना पड़ेगा। और प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही घृणित है, विमूढ़ है, मूर्ख है। एक होता मूढ़, अब जानंती मां मूढ़ा मनुष्यम तनम आश्रितम, एक मूढ़, और एक प्रहलाद महाराज कहते हैं विमूढ़ा। मूर्ख है। माया सुखाया भ्रम उद्भतो विमूढ़ान। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि कुछ वर्ष इंद्रिय तृप्ति करो, ऐश करो, खाओ पियो, मजे लूटो। असल में इस संसार में कहीं भी मजे नहीं है, आरामदेह जीवन नहीं है इस संसार में। फिर भी हम अपना असली कार्य क्या है उसको भूल चुके हैं। असली कार्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाना, यह असली कार्य है हमारा। लेकिन आज की जो सभ्यता है बहुत ही खतरनाक सभ्यता है। ये तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाती है, केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह खाओ पियो मजे करो ऐश करो और उसके बाद में मर जाओ, बस ये सभ्यता है आज की। ये सिखाती है हमें सभ्यता। मनुष्य जीवन जो है हमें किसी खास मकसद के लिए, खास कार्य के लिए मिला हुआ है। तपस्या के लिए, तपस्या के लिए मिला हुआ है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला हुआ है मनुष्य जीवन। किंतु वे लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं लोग। कुत्ते बिल्ली भी क्या करते हैं, खाना पीना ऐश करना, सो जाना, बाद में मर जाना, बच्चे पैदा करो, बस। खूब मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत पक्का इरादा, ऐसा भी स्लोगन था, एक दफा ही निकला था, हमारी गवर्नमेंट ने निकाला था। कड़ी मेहनत करो, धन कमाओ, इंद्रिय तृप्ति करो, बस। ये कोई मानव सभ्यता नहीं है। मानव जीवन जो है कृष्ण भावना हेतु के लिए ही केवल मिला है, और किसी के लिए नहीं है। अभी देखा जाए तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी है ही नहीं है। फिर भी हम पूछते हैं कैसे हो, बहुत अच्छा हूं, नाइस। सब झूठ बोलते हैं। कोई भी नाइस चीज कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ बोलेंगे, अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यदि हम भगवत भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, तो ये संसार जो है ये क्या है, जंगल की आग की तरह है। जलती आग, जंगल की आग। सवेरे हम रोजाना बोलते हैं ना, संसार दावा नल लीड लोक त्रणाया कारुण्य घना घना तम। जंगल की आग कोई लगाता नहीं है, अपने आप लग जाती है। लकड़ियां आपस में टकराती हैं, जब बांस आपस में जब हवा चलती है टकराती है तो आग लग जाती है, और उसमें सब कुछ जल करके स्वाहा हो जाता है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से आग लगी थी, 10-12 साल से आग लगी थी, शायद अभी बुझ गई है, पता नहीं, पिछले महीने तक तो लगी थी। तो हम भी संसार दावा नल में जल रहे हैं। एक्चुअली भौतिक संसार का अर्थ ही यही है, क्या, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, ये भौतिक संसार। और आध्यात्मिक का अर्थ है कृष्ण को तुष्ट करना। दो ही बातें हैं, अपने आप को तुष्ट करो, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करो, या कृष्ण को तुष्ट करो। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा इसके बारे में
एक भजन लिखते हैं, उसमें ये सारी बातें क्लियर की हैं, वो सब हम पे लागू होती हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर नहीं लागू होती, उन्होंने लिखा है, लेकिन लागू सब हम पे होती है, वो तो शुद्ध भक्त हैं। मैं उस भजन को गाने का प्रयास करूंगा, बंगाली में है, आप सुनिए। भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। तो मार चरणे आसियाची आमी, भूली बो दुखेर कथा। भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। जननी जठरे चिलाम झकोना, जननी जठरे चिलाम झकोना। विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, विंचलाए दिन दासे। भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। ताको ना भाभिन जन्म पाया, कोरिलो भजन ताब। जन्म होइला पड़ी माया जाले, जन्म होइला पड़ी माया जाले। न होइले ज्ञान लाभ, भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। आधरेर छेले स्वजने कैले, आधरेर छेले स्वजनेर काले। हाशिया कटोन काल, जनक जननी स्नेहते भूलिया। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिला भालो। भूलिया तो मार संसार आशिया, पे नाना विध व्यथा। क्रमे दिने दिने बालक होइया, क्रमे दिने दिने बालक होइया। खेलनु बालक सा, आर किछु दिन ज्ञान उपजिलो। आर किछु दिन ज्ञान उपजिलो, पाठ पढ़ी अरह। भूलिया तो मार संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा। विद्यार गौरवे ब्रह्मदेशे देशे, विद्यार गौरवे ब्रह्मदेशे देशे। धनोपार्जन कोरी, स्वजन पालन कोरी एक मने। भूलिनु तो मार हरी, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे। धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालन कोरी एक मने। भूलिनु तो मार हरी, भूलिया तो मार संसार आशया। पे नानाविध व्यथा, वार्धक्य एकोना भक्ति विनोद। कांधिया कातर अति, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो। एखोनो की हवे गति,
एकिन होवे गति। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आपको भूल करके इन संसार में बहुत दुख उठा रहा हूं मैं, व्यर्था ही दुख उठा रहा हूं। तुम्हारे चरणों को छोड़ के, चरण कमलों को छोड़ करके संसार में कहीं भी कोई सुख नहीं है। ये आपको मैं अपनी कथा सुना रहा हूं। हे भगवान, हे कृष्ण, ये मेरी कथा है कि आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं इस संसार में बहुत दुख उठा रहा हूं। बार बार मुझे पैदा होना पड़ता है, बार बार मुझे मरना पड़ता है, बार बार बीमार होना पड़ता है, कदम कदम पे दुख है। तो ये मेरी कथा हे हरि सुनिए। मां के गर्भ में बिल्कुल पैक था हथकड़ियों से, बड़ा तकलीफ उठा रहा था। मां भी तकलीफ उठाती है और बच्चे भी जो गर्भ में हैं बहुत कष्ट होता है उनको। भीषण बंधन में बंधा हुआ था मैं प्रभु से। तब मैंने प्रार्थना की। वहां थोड़ी देर के लिए प्रभु के दर्शन हुए। देखिए, सबको प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो भूल जाता है आदमी। गर्भ में भी कुछ जो भाग्यवान पुण्यवान भक्त लोग हैं उनको याद रहती है। जैसे भरत महाराज को अपना पिछला जीवन गर्भ में भी याद रहा और जब बाहर आए तब भी याद रहा, इसलिए बड़े काशिश रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी अपना पिछला जीवन पता था। सो 9 महीने तक मां के गर्भ में पास बंधन में बिल्कुल जकड़ा हुआ था मैं। फिर मैंने आपके दर्शन किए, आपने मुझे दर्शन दिए कृपा करके, और मैं आपसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, एक बार, केवल एक बार मुझे निकाल दीजिए यहां से, बंधन से, इस गर्भ रूपी जेल से मुझे एक दफा तो निकाल दीजिए। मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। हमने भी कभी बोला होगा शायद मां के गर्भ में, लेकिन जब बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। इतना कष्ट होता है मां के गर्भ में, हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें भूल जाता है बाहर आकर के। जब जन्म हो गया, प्रार्थना की, भगवान ने कृपा कर दी हमारे ऊपर। उस कोठरी से बाहर निकले गर्भ से, और ज्यों ही हम बाहर निकले तो पहले तो नर्स पकड़ती है ना, उल्टा करके लटकाती है। कभी कभी नहीं बोलता बच्चा तो उसको थप्पड़ भी मारते हैं जोर जोर से, तब बोलने लगता है। तब वो रोता है, पहले रोता है ना बच्चा, फिर सब घर वाले खुश हो जाते हैं, मां भी खुश। कभी कभी मां को होश नहीं आती है तो जो बाकी जो परिवार के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं, ओ लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। उसको गोदी में उठाता है कोई बहन, जो बड़ी बहन है, कोई गोदी में उठाती है, बाप गोदी में उठाता है, बुआ गोदी में उठाती है, चाचा चाची ताया ताई रिश्तेदार सब गोदी में उठाते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं उसको। ओ बहुत बढ़िया जीवन है ये। वो सब तो मेरी सेवा में लगे हुए हैं। वो जो पीछे जो भगवान से वादा करके आए वो तो भूल गए। सब प्यार कर रहे हैं, मां भी प्यार कर रही है, चूम रही है, उठा रही है। मैं उनके ऊपर टट्टी भी कर देता हूं, फिर भी वो नीचे नहीं फेंकते हैं, साफ करते हैं बड़े प्यार से। तो ये जीवन तो बड़ा अच्छा है, सारी मेरी सेवा में लगे हुए हैं, पिछला सब भूल गया। ऐसे करते करते थोड़ा और बड़ा हो गया,
अपने बराबर के जो बालक हैं उनसे खेलना शुरू कर दिया। ओ, फिर तो दुनिया की परवाह, फिर माँ बाप की परवाह भी रहती है उस समय, खेल में मगन। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है तो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं और सब जो पाठ हैं वो याद करते हैं और बड़ा विद्वान बन जाते हैं। ओ, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया। एक गाना बहुत अच्छा है इसके लिए, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन तो खेल में खो दिया है, जवानी नींद में गुवा दी। कभी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, कभी लड़कों के पीछे भाग रहे हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये सबकी स्थिति है, ये कोई बच्चा नहीं है ऐसे, सब भागते हैं। अभी अभी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ना इंद्रियां काम करती हैं, हैं? अभी बुढ़ापा देख के रोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पूरा, यही किस्सा चलता रहता है, सदियों से चल रहा है ये किस्सा, फिर भी अकल नहीं आती है हमें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर ली, विद्वान बन गए। जो बड़े विद्वान होते हैं ना, प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बड़े अकड़ू होते हैं, वो बड़े अकड़ू होते हैं। सबसे ज्यादा अकड़ू कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और आईएएस। हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हम बड़े विद्वान हैं, हमारे से कौन जानता है। बड़ी अकड़ आ जाती है। उसके बाद कोई नौकरी करना शुरू कर देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, और मजिस्ट्रेट सरकारी नौकरी में तो जाना पड़ता है, कभी यहां पोस्टिंग, कहीं यहां पोस्टिंग, कहीं पोस्टिंग, और खूब धन भी कमाया जाता है, पैसा भी मिलता है खूब। और जो सारा पैसा है वो अपने परिवार की सेवा में लगाते हैं, उनको खुश करने के लिए। इस प्रकार हास्या कटन काल है, ये जीवन हमारा निकल रहा है। हम माता पिता के स्नेह में, बच्चों के स्नेह में, पोता पोती के स्नेह में लगे रहते हैं, और ये संसार हमें बड़ा भालो लगता है। भालो भालो भालो, बंगाली में भालो, बड़ा अच्छा लगता है। वो इसके बिना तो और कुछ है ही नहीं दुनिया में। इस प्रकार हमारा जीवन निकलता जाता है। खूब पैसा कमाया, रिश्वत भी ली, कई लोग रिश्वत भी लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, और काम क्या आता है वो पैसा। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है ना, अभी मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। हमारे कृष्णांगी माता जी हैं यहाँ पर, गोपाल महाराज की शिष्य हैं वो, उनके, और गंगादास उनके हैं। अभी बुढ़ापा आ गया है, कोई देखने वाला नहीं है, भगवान के भरोसे हैं। 2 बेटे थे, एक बेटा तो चला गया, एक बेटी है वो रहती है उधर अलग, बेटा है वो वृंदावन में रह रहा है। कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। सब अपने मजे में डूबे हुए हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, सबका ये हाल होना है, सबका ये हाल है। वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनको कोई पूछने वाला है। इसलिए ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी, और ये भरत महाराज के भी जीवन से पता चलता है कि हमें केवल और केवल कृष्ण का सहारा लेना है, और कोई इस जगत में सहारा देने वाला नहीं है।
सदा कृष्ण को याद रखिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने अपना पूरा जीवन पहले खेल कूद में गवा दिया, फिर माँ बाप के लाड प्यार में गवा दिया, फिर पढ़ाई में गवा दिया, फिर नौकरी में गवा दिया, भक्ति करने का समय नहीं मिला। और अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, यार ये लोग तो भक्ति करते हैं, कृष्णांगी गंगादास भक्ति करते हैं, सवेरे मंगल आरती में डेली आती हैं, वो चला नहीं जाता है लेकिन लाठी लेकर के भी आती हैं। गंगादास नहीं आ पा रहे हैं। सो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, सारी उम्र तो भजन नहीं किया है, इसलिए अब हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा क्या होगा। अंत समय में याद आती है फिर, और जिसको ये भी याद आया अंत समय में भी याद आ जाए ना जिसको, अब मेरा क्या होगा, तो वो भी समझो भाग्यवान आदमी है। मेरा क्या होगा, और ये जब मन में क्वेश्चन उठे और फिर कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दे, भक्तों का संग अगर मिल जाए तब, बड़ा मुश्किल है संग मिलना। और जो भक्त है ही नहीं है, कृष्ण भक्ति में लगे ही नहीं है, भौतिक जगत में रह रहे हैं, खाना पीना सोना कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐश करना, खाओ पियो आनंद लो, बच्चे पैदा करो मर जाओ, तो उनका क्या होने वाला है ये तो वही जाने। लेकिन इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि हम अपना जीवन बड़ा ही ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए, गलत संग में ना चले जाएं, साधु संग लेने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन हमारा सफल है, अन्यथा व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण ही हमारी माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, कृष्ण ही हमारा बंधु है, कृष्ण हमारा सब कुछ है, उस पर डिपेंड हो जाइए बस। भौतिक दुनिया पे डिपेंडेंट छोड़ दीजिए। अगर हम अपना भला चाहते हैं, इन संसार से बचना चाहते हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से बचना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एकमात्र कृष्ण की शरण लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई आज के विषय में कोई प्रश्न है, समीक्षा है तो बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय आज समाप्त हुआ है और अध्याय की पुस्तिका भी इसमें